I want to summarize this method. When we are solving any recurrence relation using substitution method, then we are having basically we can say three steps. First one is, first of all, we need to assume the solution or guess the solution of that particular recurrence relation. So it can be guessed on the basis of some practice or some previous experience, or we can use other methods like a recursion tree method to guess the solution. Okay, this is the first step. After guessing the solution, we need to find out, or we need to prove that our solution is working on the smaller values of n. Okay, what can be the smaller values of n? It can start from 1 to n minus 1 if n is input there. Okay, after that we need to find out the values of constant for which our solution is working. The constant values, like if want to denote that in big O, omega or theta notation, then in big O or omega notation, there is a need to find out the constant C, that is positive constant, or the integer and naught for which that inequality holds true. Or in case of theta notation, we need to find out the two constants C1 and C2 and the positive integer, that is n naught. Okay, so this is the whole procedure of finding the solution of a recurrence relation using the substitution method. So let's take this example. You can see on the screen that we are having this recurrence relation. I will solve this recurrence relation and I will show you some more examples, like it may be possible that while we are guessing the solution, that assumptions can be wrong. So if the assumption will be wrong, then we will not be able to prove that assumption on the smaller input of n or smaller values of n. So how that will be done, I will show you in the next slide. Okay. So in the slide, let's suppose you are given this recurrence relation t of n equal 4tn by 2 plus n square. Okay. So let's assume that this is the solution for this recurrence relation. It is n square log n. So we can assume, like here, this function is reducing every time by half, 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 half. So we can assume that solution for this t of n by 2, or this part of this reconciliation, will be in terms of log n, and we will multiply this log n by, and the contribution of this portion of this reconciliation will be n square. So the whole contribution of this recurrence relation can be n square log n. So we are writing here, assume that the lower bound for this recurrence relation is t of n equal omega of n square log n. So now, as we have assumed this, now what we need to prove, as you can see here, this is the omega notation or lower bound, then the inequality for this omega notation will be like this. Means t of n will be greater than equal to Cn square log n for all n greater than n naught and c greater than 0. Okay, so this is the definition of the omega notation. So now we can check this. Let the value of the base condition is t of 1 for t n equal 1 is 1. Let's suppose it is 1. So we can check it for the base case value. Like for the base case n equal 1, we have t of 1 equal 1. So while we are putting value here, if we are given t of 1 is 1 from this function, and we can check the value of this assumptions or the gas solution for n equal 1. So it will be c 1 square log of 1, means it will be 0. Okay, so 1 greater than 0. So this is true. So it will be true for all the values of c greater than 0. Okay, we can choose any value of c. If we are putting the value of n equal 1, then this inequality true holds for all the values of c greater than 0. So this is our base condition, means the base condition is t of 1 equal 1. Okay, so we have proved this base condition that it will be true for all the values of c greater than 0. Okay, now the next step is we need to prove assumed solution or gas solutions on the smaller input of n. Okay, so how can we find out the smaller input? As I have told you already, it will be any value less than 2n. It can be considered as smaller value of n.
but we will take that smaller value for which we want to prove that from the recurrence itself. Okay, so here it means when how can we solve this recurrence relation, means how can we remove it from recursion and directly convert it into the in terms of n. So as we are having like t of n by 2, so we can take n by 2 as the smaller input, okay, to prove this inequality. Okay, so let's suppose we are proving this whole inequality for n equal n by 2, that is the smaller value of n. So t of n equal 4t n by 2 pi n square, it is our given recurrence relation. We will find out the value of t n by 2 from here. It will be c n square by 4 log n by 2. Okay, so we'll put that value here. So we'll get t of n, it must be greater than equal to 4, और t n by 2 की वैल्यू है c n square by 4 log n by 2 plus n square. So as we solve this, we will get c n square log n minus c n square log 2 plus n square. Okay, the value of log 2 is 1, and after further simplifying this expression, we will get like c of n square log n plus 1 minus c n square. Okay, so this value it must be so this value must be greater than to the our guessed assumed solution. So we are having in the guessed assumed solution cn square log n, and the expression here is cn square log n plus 1 minus cn square. तो ये वाली वैल्यू हमारे guessed solution से always बड़ी कब होगी, when the value of this 1 minus c will be greater than 1. ओके, मीन्स सॉरी विल बी ग्रेटर देन जीरो, मीन्स अगर ये पॉजिटिव रहता है ऑलवेज, तो ऑटोमेटिकली इस एक्सप्रेशन में सी एन एस के लॉग एन में कुछ ना कुछ ऐड होगा, और ये इस सी एन एस के लॉग एन से ऑलवेज बिगर होगा. So the value of 1 minus c must be greater than 0. So when we solve this like 1 minus c greater than 0, so from there we will get c less than 1. It means for every value that is of c that is less than 1, this inequality will hold true. Okay, so by this way we have proved that our inequality is hold for smaller values of n. So if it is holds or true for smaller values of n, then we can say it is true for the final the value of n also. Okay, so this expression hold true like t of n equal omega of c n square log n for c less than 1 and n greater than equal 1. Okay, तो हमने क्या क्या किया इसमें, all the three steps we have proved here, all here. First step is guessing the solution, next step is solving this our guide solution and prove that it is working on smaller values of n, and at the end we will have find out the constant for which this whole expression or inequality or our assumed solution is correct. Okay, so this is the whole procedure while we are solving the recurrence relation using substitution method. Now any doubts, any queries from anybody? सर हाँ, सर n लेस देन n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए हमने प्रूफ कर दिया, बट n अगर 0 से 1 के बीच में हुआ तो एंड 0 से 1 के बीच में वो हमारी बेस कंडीशन इसमें बेसिकली 1 है. लाइक वी आर अज्यूमिंग हियर दैट हमारा जो प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होके अनटिल तब तक रिड्यूस होगी जब तक कि उसमें प्रॉब्लम साइज 1 नहीं रह जाएगा. अच्छा, कोई भी आप इनपुट दे रहे हो लाइक आई एम सॉर्टिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर, तो उसमें लास्ट या मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है लिस्ट की, अच्छा दैट विल हाँ बी ओके 1 दैट विल हाँ बी सिंगल एलिमेंट, वो चीज़ है ये. ओके सर ठीक है थैंक यू ठीक है, और कोई डाउट किसी को? नो. ओके, तो अभी देखो, नाउ वी कैन नॉट से हियर दैट दिस बाउंड इज टाइट बाउंड और लोअर बाउंड. अभी टाइट बाउंड और लोअर बाउंड क्या है? इट मे बी पॉसिबल, सपोज मैं यहाँ पर एज्यूम कर लेता दैट लाइक द आर सॉल्यूशन फॉर दिस रिकरेंस रिलेशन इज ओमेगा ऑफ एन क्यूब लॉग एन, तो अभी मैं उसको यहाँ पे प्रूव कर सकता था. If we can I can guess that the solution for this recurrence relation is n raised to power 4 log n, तो भी वो ट्रू होता, हमें कोई ना कोई c और n की वैल्यू मिल जाती.
सो वी कैन नॉट से दैट दिस इज द टाइट बाउंड और लोअर बाउंड. अगर हम इसको प्रूव करना है then we need to check it for some lower values as compared to this n square log n. Okay, तो मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ. like okay, this is the example. Let's suppose we are having this expression or recurrence relation t of n equal to t n by 2 plus 1. Now find out the upper bound, or in other words find out the tight upper bound. Okay, तो ऐसा भी हमने एक पहले एक्सप्रेशन सॉल्व किया था. द एक्सप्रेशन था 2t n by 2 plus n, दैट इज द रिकरेंस रिलेशन फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम. तो वहां पर क्या था, हमने उसका सॉल्यूशन अज्यूम किया कि भाई इसका सॉल्यूशन हो सकता है n log n. तो उसके बिहाफ पर ही हम सोच रहे हैं यहाँ पे कि इसका सॉल्यूशन भी इसका n log n, इसका log n कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन 1 है, द सॉल्यूशन मे बी o ऑफ log n. तो अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि सॉल्यूशन जो हमने अज्यूम किया है ये सही भी है या नहीं है. ओके, जस्ट वी आर राइटिंग हियर t ऑफ n इक्वल o ऑफ log n. इट मींस वी आर डिनोटिंग इट इन big O notation. So what are the inequality in big O notation? If I am writing like this, t of n equal O of log n, then I can say t of n is less than equal c log n for some value of c and n. Okay, so I can write like this. तो इसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा सॉल्व कर दिए हैं. इसमें क्या क्या किया है, हमारी इनइक्वलिटी है t ऑफ n लेस देन इक्वल c log n. ओके, और हमारा एक्सप्रेशन है ये वाला. तो हम क्या करेंगे, इस अज्यूम सॉल्यूशन से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे t ऑफ n बाई 2 की, दैट विल बी c log n बाई 2, और वो पुट कर देंगे यहाँ पे. तो विल गेट लाइक दिस, t ऑफ n लेस देन इक्वल 2c log n बाई 2 प्लस 1. इसको फर्दर सॉल्व करो, इट विल बी 2c log n माइनस 2c प्लस 1. ओके, और इसको फर्दर सॉल्व करो, तो वी आर गेटिंग हियर 2c log n minus 2c plus 1 less than equal c log n. So is it possible for any combination? We are having here 2c log n minus 2c plus 1 less than c log n. तो अगर मैं इसमें से c log n को अलग कर देता हूँ तो उसके बाद भी मेरे पास बचता है c log n minus 2c plus 1. Means this value at the left side of this expression will always be ग्रेटर देन टू दिस वैल्यू, क्योंकि इसमें एडिशन हो रहा है यहाँ पे c log n के अंदर. तो ये पॉसिबल नहीं है. देयरफॉर वी कैन से हियर t ऑफ n नॉट इक्वल टू o ऑफ log n. यहाँ पे हमने क्या किया, बहुत छोटी बाउंड इसके लिए अज्यूम कर ली, अपर बाउंड ये नहीं है इसकी. ठीक है, मैंने आपको पहले कुछ एक्सप्रेशंस में बताया था, जैसे इनकी हमने ग्रोथ मैंने शो की थी, लाइक द वैल्यू ऑफ log n. We are comparing this function log n and the function n. So the growth of this function log n will be less as compared to the function n. It is a linear in terms. ठीक है, log n का कम होगा, उससे ज़्यादा n का होगा, उससे ज़्यादा n log n का होगा, फिर उससे बड़ा फंक्शन n स्क्वायर होगा, फिर n क्यूब होगा, एंड सो ऑन आगे. लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगी वो होगी 2⁻n, जो हमारे इस तरह के एक्सप्रेशन होंगे. ठीक है, तो जब हमने इसका सोल्यूशन अज्यूम किया तो हमने यहाँ पर ये गलत बाउंड अज्यूम कर ली. इसकी ये बाउंड नहीं होगी, इससे थोड़ी सी बड़ी बाउंड होनी चाहिए. तो हमने क्या किया, इसको जब इसमें फॉल्स हो रहा है इसका मतलब थोड़ा सा और अप जाओ. तो हमने log n से जस्ट ऊपर क्या है n, तो वी हैव अज्यूम नाउ सॉल्यूशन एज o ऑफ n. तो जस्ट चेक इट कि क्या इसके लिए ट्रू हो रहा है ये. Again we are checking it, and if we are solving it, t of n less than by putting value of n by 2 here, we will get 2c n by 2 plus 1. So it will be cn plus 1. So cn plus 1 less than equal cn, it is also not possible. ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 1 इसमें always add होता रहेगा, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से always बड़ी होगी, ना तो इक्वल होगी ना कम होगी. इनइक्वलिटी हमारी यहाँ पर भी फॉल्स हो रही है. आप क्या करना चाहिए, यहाँ ऐसा पॉसिबल है, rather than directly showing this in this relation, what we should do, it means ये हमने जो गैस अज्यूम किया है, it is not appropriate gas. जब Cn की वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी कब होगी, जब इसमें से कुछ यहाँ पर लेफ्ट साइड में माइनस होगा. तो Cn प्लस 1 की जगह Cn माइनस 1 हो जाए या माइनस कोई कांस्टेंट हो जाए, then only this inequality will come true. Okay, so
Careful fine tuning on the above gas shows that Tn is indeed O of n. So now again gas another solution, it is T of n equal n minus d, क्योंकि हमको यहाँ पे कुछ माइनस करना है, ठीक है। अच्छा, नाउ इसमें हमने क्या किया, ये जो हमने एजम्पशन लिया है इसमें वैल्यू पुट करके जब इसको हम सॉल्व करते हैं देन वी विल गेट दिस सॉल्यूशन 2cn/2 minus d plus 1, then n minus 2d plus 1, n minus 2d plus 1 here, this will be less than equal to n minus d. So it will be true for all the values of d greater than equal 1. So now our inequality true and our solution, or we can say the tight upper bound for this recurrence relation will be O of n minus d. और थोड़ा सा अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, लेट सपोज वी आर टेकिंग हियर n log n, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन ट्रू आए, ओके। तो देयरफॉर ये जो है एक्सप्रेशन इस फॉर्म का होगा एंड द बाउंड विल बी O of n, ओके। ये क्लियर हुआ क्या? सर यस सर। सर इसमें जो फर्स्ट गेस था उसमें वो नॉट पॉसिबल कैसे आया, मतलब 2c log n माइनस 2c प्लस 1 को हमने कंपेयर कैसे किया c log n से, प्रोवाइडिंग c इज ग्रेटर देन 0, तो कंपैरिजन कैसे करके ये कैसे आया? लेफ्ट साइड का जो एक्सप्रेशन है, अच्छा अगर मैं लेफ्ट साइड के एक्सप्रेशन को राइट साइड के एक्सप्रेशन की फॉर्म में लाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, लाइक मैं c log n को 2c log n को आई कैन राइट c log n प्लस log n, ठीक है। यस सर। अच्छा, तो लेफ्ट साइड वाले एक्सप्रेशन में से हमारे कुछ माइनस होना चाहिए, तब हम राइट साइड में जो राइट वाला एक्सप्रेशन है इससे बिलो या लेस या इक्वल हो सकते हैं। पर यू कैन सी, देखो इसमें क्या हो रहा है, c log n प्लस c log n प्लस 1 माइनस 2c। आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई सिनेरियो आए या ऐसी कोई n और c की वैल्यू आए जिसके लिए वो ट्रू हो। अगर लेफ्ट साइड में c log n में से 1 भी माइनस हो रहा होता देन ओनली वी कैन से कि लेफ्ट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है राइट साइड वाले से छोटा है और होगा पर्टिकुलर सम कॉम्बिनेशन ऑफ c और n। बट यहाँ पर तो लेफ्ट साइड वाले में ऐड ही हो रहा है, c log n में c log n ही ऐड हो रहा है, प्लस 1 ऐड हो रहा है। तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आएगी जिस सिचुएशन में the expression of left side will be less than or equal to expression of right side, ओके सर। ठीक है। देखो ये तो थोड़ा सा ये समझाने के लिए था कि इट मे बी पॉसिबल कि हम कुछ अजम्पशन गलत ले लें। अगर गलत ले लेते, जैसे हमने यहाँ पे O of n के लिए लिया है, तो उसको किस तरीके से और रिजोल्व कर सकते हैं और टाइट बाउंड अज्यूम कर सकते हैं। अब एक नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक डाउट है सर, ने पिछले दो गेसेस जो हैं उसमें सीधे कॉम्प्लेक्सिटी का गेस लिया है कि वो O log n है, O of n है। तो सर आपने जो तीसरा है उसके अंदर आपने सीधे Tn का गेस लिया है कि मतलब वो Tn इज इक्वल टू n माइनस डी। तो सर मतलब ये थोड़ा ऑड नहीं हो गया, क्योंकि पहले हम कॉम्प्लेक्सिटी गेस करते हैं ना, उसमें Tn को ही थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा। कंफ्यूजिंग था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। जो पहले एग्जांपल्स बताए थे, जो स्टार्टिंग वाले दो थे, तो बेसिकली अगर मैंने वहाँ क्वेश्चन लिखा फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दिस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो आप उसमें कोई सी भी बाउंड कैलकुलेट कर सकते हो। आप अगर कोई बाउंड कैलकुलेट कर रहे हो तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो टाइट बाउंड हुई होनी चाहिए, ठीक है। वहाँ ऐसा कुछ हमने मेंशन नहीं किया है। तो अगर किसी एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन, अगर हम अपर टाइट बाउंड की बात करते हैं, अगर उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन n स्क्वायर है और हम वहाँ पर n क्यूब करके या n स्क्वायर लॉग इन करके सॉल्यूशन और हम या ऐसे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो वो भी एक बाउंड होगी। n स्क्वायर के ऊपर अगर कोई दूसरा फंक्शन आता है तो इट मे बी पॉसिबल इट विल बी n स्क्वायर लॉग n या कोई दूसरा फंक्शन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए भी हम c और n नोट की वैल्यू निकाल सकते हैं। आंसर वो भी ट्रू होगा क्योंकि वो भी एक अपर बाउंड है, बट वो टाइट बाउंड नहीं है, ठीक है। दैट कैन बी अ लूज बाउंड। अगर टाइट बाउंड की बात करते हैं, जैसे मैंने कल भी बताया था, हमने कोई एक्सप्रेशन लिया लाइक द एक्सप्रेशन इज n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, और अगर मैं इस एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो एक्सप्रेशन की कॉम्प्लेक्सिटी डोमिनेंट टर्म की फॉर्म में आएगी, ठीक है।
बाकी जो हमारी टर्म्स है उनको हम रिमूव कर देंगे, तो वी कैन से देयर दैट कॉम्प्लेक्सिटी लाइक एन स्क्वायर प्लस 2n+1, द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ ऑफ एन स्क्वायर। पर जो इसका एक्सप्रेशन होगा, दैट एक्सप्रेशन विल बी एन स्क्वायर प्लस 2n+1। तो ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि इसका जो बाउंड है वो एन स्क्वायर की फॉर्म में ही है, या आपने देखा है इस तरह का, तो हम उसको डायरेक्ट फिर एन स्क्वायर लॉग एन एन क्यूब पे चेक नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या बाउंड वाकई में एन स्क्वायर की फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी, थोड़ा सा एक्सप्रेशन मॉडिफाई करके। तो अगर आपको ये मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में लाइक फाइंड आउट द टाइट अपर बाउंड, तो आपको फिर टाइट अपर बाउंड ही फाइंड आउट करनी है। और अगर ऐसा मेंशन नहीं है देन यू कैन अज्यूम अ सॉल्यूशन, ठीक है। पर ऐसा भी नहीं हो कि वो बिल्कुल ही ऑड लग रहा हो। ऑड से मीनिंग है हमको वहां दिख रहा है कि इसका सॉल्यूशन एन स्क्वायर हो सकता है, पर फिर भी वहां पर हम n⁻³ की बाउंड शो कर रहे हैं, तो दैट विल नॉट बी अ जस्टिफिएबल सॉल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये जो एक्सप्रेशन था, ये एक्सप्रेशन हमने स्टार्टिंग में देखा था, ठीक है। इस एक्सप्रेशन का जो सॉल्यूशन था, जो इसकी बाउंड थी, ये याद आ रहा है कुछ एक्सप्रेशन आप लोगों को? द एक्सप्रेशन इज t ऑफ n इक्वल टू tn/2 प्लस n। ये मैंने सबसे पहला क्वेश्चन करवाया था, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन और रिकरेंस रिलेशन फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम, ठीक है। वहां पर हमने डायरेक्टली अज्यूम कर लिया कि भाई इसका n log n सॉल्यूशन होगा, और हमने उसमें बेस केस निकाला और जो हमने वैल्यूज थी वो फाइंड आउट की, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है और लेट सपोज मैंने इनिशियली इसमें बाउंड एज्यूम की t ऑफ n इक्वल o ऑफ n स्क्वायर, ये टाइट बाउंड नहीं है, इसकी बाउंड तो है, पर मुझे पता है कि इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n की फॉर्म में आनी चाहिए। और जब इसको आप सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे टी ऑफ एन इक्वल ओ ऑफ एन स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं तो cn²/2 प्लस एन लेस देन इक्वल cn², ये कंडीशन। हाँ, कौन पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर प्रणव, सर मुझे हम्म just एक डाउट है कि लाइक अभी लाइक कैन यू जस्ट गो बैक टू दैट स्लाइड। हम्म सर लाइक मुझे इनिशियली पता नहीं है कि क्या गैस करना है, सो अगर मैं हायर बाउंड से स्टार्ट करता हूँ, जैसे 2 की पावर n या n की पावर समथिंग, ओके, हाँ तो हाँ, तब तो सेटिस्फाई कर लेगा, राइट? वो करेगा। आप सब मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। लेट सपोज इस एक्सप्रेशन की बाउंड n स्क्वायर है, ठीक है। तो उसकी अगर आप उसको n³ के लिए चेक करोगे ना, तो भी उसकी बाउंड होगी। हमने जब एसिम्प्टोटिक नोटेशन मैंने बताए थे आपको, तो उसमें सिंपल एक कोई भी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं लाइक t ऑफ n इक्वल o ऑफ gn, या f ऑफ n इक्वल o ऑफ gn। तो वहाँ पर क्या है, दो तीन कंडीशन है जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन इज that is an inequality like f of n is less than equal cgn for some combination of c और n not। तो जो भी आप बाउंड चूज कर रहे हो, और अगर वो टाइट बाउंड से थोड़ा भी ऊपर है, तो भी हमें सी और एन का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन मिल जाएगा वहाँ पे। बट वी विल से दैट दोज आर ऑल द लूज बाउंड्स। बट अगर आप टाइट बाउंड की बात करते हैं, तो हमको क्या करना होता है, जो भी आपने बाउंड कैलकुलेट की है, आप उससे थोड़ा सा लोअर फंक्शन पे जाओगे और फिर चेक करोगे कि उसके लिए वर्क हो रहा है नहीं हो रहा है, या वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। और ऐसा होगा वो वर्क नहीं करेगा, देन वी कैन से कि नहीं, ये वाली जो बाउंड है इट इज द टाइट बाउंड। बट अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं है कि क्या बाउंड इसकी है, टाइट फाइंड आउट करनी है या लूज फाइंड आउट करनी है, देन आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अनजस्टिफिएबल सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उस केस में। इस एक्सप्रेशन के लिए अगर हम बाउंड निकालते हैं तो n³ के लिए भी आ जाएगा, n⁻⁴ के लिए भी आ जाएगा, 2⁻n के लिए भी आ जाएगा, बट वो एक जस्टिफिएबल आंसर नहीं होगा। अगर हम कोई आंसर ले रहे हो, लूज बाउंड की बात करते हैं, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चल सकता है ऊपर नीचे। आप क्वेश्चन पूछो, तुम क्या कहना चाह रहे हो? वही क्वेश्चन था कि लाइक अगर मैं हायर वाले पावर से अगर आता हूँ तो लाइक माय आंसर विल ऑलवेज सेटिस्फाई बिकॉज वो राइट। रंस, हाँ हाँ बिल्कुल। सो सो लाइक तो फिर मैं आगे चेक ही नहीं करूंगा क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि ये टाइट बाउंड ही फाइंड आउट करनी है, तो फिर आप चेक करोगे। अगर आपको बोला जा रहा है नो जस्ट सॉल्व दिस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग दिस मेथड, पर मैंने फिर वो वाली बात कह रहा हूँ ना कि जस्टिफिएबल आंसर भी होना चाहिए उस चीज़ का। यहाँ पर आप देखो 2n/2 प्लस n, अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ तीन गैसेज हैं। सबसे पहले इसमें हमने इसका सॉल्यूशन एज्यूम किया o ऑफ n स्क्वायर।
इसको चेक किया तो सी एन स्क्वायर प्लस बाई 2 प्लस एन लेस देन सी एन स्क्वायर, ये कंडीशन ट्रू होगी इसकी फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ सी और एन। बट मेरे को मालूम है कि इसका ये गैस हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है, तो लॉग एन आएगा ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या किया है, इस एन स्क्वायर से जस्ट बिलो फंक्शन होता है एन लॉग एन, जिसकी ग्रोथ इससे थोड़ी छोटी, ऐसा नहीं है और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट हम नॉर्मली जिन फंक्शंस को लेके चलते हैं या जिन पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें हम इन्हीं फंक्शंस पे अज्यूम करते हैं। विल स्टार्ट विद लोएस्ट फंक्शन दैट जिसकी लोएस्ट ग्रोथ है, वो हो गया लॉग एन, फिर हो गया एन, फिर हो गया एन लॉग एन, फिर हो गया एन स्क्वायर, देन एन क्यूब, देन एन रेज टू पावर एक्स, और लास्ट में 2 रेज टू पावर एन। ठीक है, जब ओ ऑफ इसके लिए एन स्क्वायर के लिए चेक किया, कंडीशन ट्रू आ रही है, हमको लग रहा है नहीं नहीं इससे और बिलो होना चाहिए अगर हम टाइट बाउंड की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया है, फिर गैस किया ओ ऑफ एन लॉग एन, एन लॉग एन के लिए चेक किया तो ये भी पॉसिबल आ रहा है फॉर सम कॉम्बिनेशन ऑफ सी और एन नॉट। अच्छा, अभी अगर डाउट है कि क्या ये टाइट बाउंड है या नहीं, या हमको लग रहा है नहीं ये बाउंड नहीं हो सकती, ओके, तो हम इससे थोड़ा और बिलो आते हैं, एन लॉग एन से थोड़ा और बिलो आए, हमने इसकी बाउंड एज्यूम की ओ ऑफ एन। अब ओ ऑफ एन के लिए जब हमने चेक किया, इट इज सी एन प्लस एन लेस देन सी एन, ये कभी भी ट्रू नहीं होगा। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो टाइट बाउंड है फॉर दिस रिकरेंस इट विल बी ओ ऑफ एन लॉग एन ऑलवेज। बाउंड ये भी है ओ ऑफ एन स्क्वायर, बट इट इज लूज बाउंड, लूज अपर बाउंड, बट दिस इज द टाइट अपर बाउंड। आप कोई क्वेरी है तो बताओ। सर जस्ट एक लास्ट क्वेरी है कि लाइक मैं कोई भी सोल्यूशन अगर निकालता हूँ, सो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि वो मेरा लूज बाउंड है या वो टाइट बाउंड है? अभी इस एक्सप्रेशन से क्लियर नहीं हो रहा है, लाइक ओ ऑफ एन लॉग एन के लिए देखो, ओ ऑफ एन स्क्वायर के लिए भी ट्रू आ रहा है, ओ ऑफ एन लॉग एन के लिए भी ट्रू आ रहा है, ये दोनों बाउंड हैं इस फंक्शन के लिए। ठीक है, अच्छा, छोटा बात, ये ओके। ये लूज क्यों है, क्योंकि मेरे को इससे जस्ट नीचे भी सॉल्यूशन मिला है, राइट राइट। इट मीन्स ये टाइट नहीं है, ये वाली टाइट होनी चाहिए। अगर मुझे इससे भी नीचे कोई सॉल्यूशन मिलता, इट मीन्स ये भी लूज है, ये भी टाइट नहीं है। अगर इसके नीचे वाले फंक्शन के लिए ट्रू हो रहा है, इट मीन्स दैट इज द टाइट बाउंड। तो अगर हमको इस तरह से टाइट बाउंड फाइंड आउट करनी है, बेसिकली ये जो मेथड है इसमें बहुत, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्प्लेक्स मेथड, बट the substitution method will always provide us the accurate bound for any recurrence relation। आगे हमारे पास मेथड्स हैं, रिकर्जन ट्री मेथड है, अदर मेथड्स हैं, वहाँ पे हम एक्यूरेट बाउंड नहीं फाइंड आउट कर पाते कई बार, बट इफ वी आर यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन मेथड देन we can surely say that this method will always provide us tight bound। clear हो गया? राइट राइट। Okay, थैंक यू so सर। okay, thank you. It is all about the substitution method. Just I will revise the concept. In the case of substitution method, if we need to find out the bound lower or upper for any function, then we have some steps. First step is guessing the solution, and I'm again saying that the guessing of solution can be done based on the practice or previous experience or by using some other method. Okay, we will study some other method which can be used for guessing the solution, that is the recursion tree method or iteration method like this. Okay, so after guessing the solution, our next step is to prove that our solution is working or holds true for smaller values of n by using the mathematical induction. Like mathematical induction says, prove that for n equal 1, prove that for n equal some values which are less than n, and if it is true for the lesser value, then only we can say by the induction hypothesis that it will be true for n also. So this is the technique of mathematical induction which we are applying here. We will check for some lower values of that input n, and after it is working for those value of n, we will find out the base condition. Or it may be possible in the question you are given some other base condition, but when we are proving our guessed solution over there, and if base condition is not satisfied, then we can somewhat change the base condition from that given base condition to other base condition. Okay, so this is the whole sequence or the process of substitution method. Now we are having this one more question on the substitution method. The question is basically there is a technique in substitution method that is known as solving a recurrence relation using change of variable method.
ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। कभी भी हमको कोई भी एक्सप्रेशन जैसे हमको मिला रिकरेंस रिलेशन की फॉर्म में मिला, तो उसमें क्या होता है, वो एक्सप्रेशन पूरी तरह से एन के टर्म्स में नहीं होता। वो क्या होता है, इट इज इन द टर्म्स ऑफ स्मॉलर वैल्यूज ऑफ एन, तो वो फंक्शन के फॉर्म में ही होता है, लाइक टी ऑफ एन इक्वल टी ऑफ एन माइनस वन प्लस एन एंड समथिंग एल्स। तो फर्स्ट मोटो क्या होता है, जब किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसे इस तरह की फॉर्म में लेके आते हैं जहां से हम उसका सॉल्यूशन एज्यूम कर सकें। ओके, so let's assume this is the question we are given, t of n equal to multiply t root n plus log n. So anybody cannot guess the solution of this recurrence relation. Either we are not able to find out the solution, or sorry, solve this very easily using the recurrent tree method. So ये एक्सप्रेशन जैसा भी गिवन है, जस्ट सॉल्व दिस एक्सप्रेशन एंड इसको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके आना है हमको। जब सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है, देन हम क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, तो दिस इज द चेंज ऑफ द वेरिएबल मेथड। हम यहाँ पे कुछ अजम्पशन लेते हैं, लाइक द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, उसको उसमें वैल्यू को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तब भी नहीं होता तो फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमको यहाँ पर ये एक्सप्रेशन गिवन है, टी ऑफ एन इक्वल टू मल्टीप्लाई टी रूट एन प्लस लॉग एन। ओके, सो वी आर गिवन दिस, to simplify this, let's assume n is equal to raised to power m. Okay, so we'll put the value of n equal to raised to power m in this expression. So after that, what we will get, we will get this recurrence relation in this form, t of 2 raised to power m equal to multiply, it is 2 raised to power m, it is 2 raised to power m. अब इसको solve कर लेते हैं, तो this will be t of 2 raised to power m will be 2 into t raised to, sorry, 2 into t 2 raised to power m by 2 plus ये m हो जाएगा, m will come at the front and log, the value of log 2 will be 1. Okay, and we are assuming the base is 2 is here. तो ये हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पर इसको इतना सिंप्लीफाई करने के बाद भी सॉल्यूशन नहीं आ रहा है समझ में कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका, तो इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करते हैं। तो नाउ टू सिंप्लीफाई मोर, लेट्स अज्यूम एस एम इक्वल टी टू रेस टू पावर एम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, तो ये तो हो गया हमारा एस एम, ये हो जाएगा एस एम बाई टू। ओके, तो एस एम इक्वल टू इंटू एस एम बाई टू प्लस एम। एनी डाउट टू एनीबडी इन दिस टिल नाउ, इन दिस एक्सप्रेशन, इसको हम किस तरीके से और सिंप्लीफाई करते जा रहे हैं? नो, ओके, सिंपली हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेके आ गए। अब इस फॉर्म में थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है इसका? लेट्स सपोज इट इज टी ऑफ एम इक्वल टू टी एम बाई टू प्लस एम। It can be the expression of Merz-Roth algorithm, and we know the solution for this expression is, this is the solution, O of m log m. सिंप्लीफाई करने के बाद हम सॉल्यूशन एज्यूम कर सकते हैं कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है उस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन का। ये सॉल्यूशन हो गया। ओके, नाउ चेंजिंग बैक फ्रॉम एस एम टू टी एन, वापस चेंज कर देते हैं, देन वी विल ऑब्टेन दिस वैल्यू। तो टी ऑफ एन इक्वल टी ऑफ, इसकी हमने वैल्यू दी थी एन की 2 रेज़ टू पावर m, और इसको एज्यूम किया था एस एम, और ये सॉल्यूशन आया था। इनको आप बैक सब्स्टिट्यूट करो, देन वी विल गेट द वैल्यू। जब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे m की 2 रेज़ टू पावर n 2 रेज़ टू पावर n, फर्दर सॉल्व करेंगे, देन वी विल गेट t ऑफ n इक्वल o ऑफ log n log n। ओके, so this will be the guessed solution for this initial given recurrence. अब हमने जैसे भी करके चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से फाइंड आउट कर लिया दैट क्या सॉल्यूशन हो सकता है इस एक्सप्रेशन का। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट इसमें देख लिया, तो अब हमें क्या करना है, नाउ वी नीड टू प्रूव दैट दिस guessed solution is correct for this recurrence relation. ये क्लियर हो रहा है जो मैं एग्जांपल आपको करवा रहा हूँ, अभी ये बता रहा हूँ, yes or no? Yes, sir. Okay, so after guessing by this change of variable method that this can be the solution of this given recurrence relation, now we will prove this by substitution method that this solution holds true or this is the correct solution. So how can we do? So we are given this recurrence relation initially, so
if we are getting this bound T of n equal O of log n log n, it means this is the upper bound, or it is given assumed it in big O notation. Okay, so the inequality for big O notation is this: T of n less than equal, sorry यहाँ पे थोड़ा change होगा, it will be, we will replace it by C. So it will be the inequality उस big O notation के लिए होगी T of n less than equal C log n log n. अब इसको हम प्रूव करना है, तो इंडक्शन मेथड के थ्रू हम कैसे प्रूव करेंगे? So by using the induction method we will prove it for smaller values of n. अच्छा, मैंने ये बोला था कि स्मॉलर वैल्यूज क्या ले सकते हैं प्रूव करने के लिए? स्मॉलर वैल्यूज हमको एक्सप्रेशन से ही पता पड़ जाएगा कि जैसे ये मेरे को यहाँ पर जो ये रिड्यूस्ड फंक्शन है ये n की किन पावर में के टर्म में है? ये है n रेज़ टू पावर हाफ की फॉर्म में। सो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। ओके, सो आई विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ t of n by 2 फ्रॉम our Gauss solution and I will put that value here in this expression. तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। ओके, it will be converted to in terms of n rather than a function step. Okay, so after putting the value of t of n by t and finding the value from here, I will put that value here. So I will get t of n less than equal to c log n raised to power half log n raised to power half log n. Okay, so this whole expression, इसको जब हम simplify करते हैं तो at the end you can see here in the second last step we are getting here c log n log n minus log n c minus 1. तो ये एक्सप्रेशन लेफ्ट साइड का हो गया, ये एक्सप्रेशन राइट साइड का हो गया। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस एक्सप्रेशन से कम कब होगी? when this value will be greater than 1. ओके, जब इट मीन्स कुछ यहाँ पे माइनस होगा इसमें से, वही जो प्रीवियस मेथड हमने अप्लाई किए थे। सो सिंपली डू c minus 1 greater than 1 greater than 0, so we will get here c greater than 1. ओके, सो c की वैल्यू तो हमको यहाँ पता पड़ गई कि हमारे गैस सॉल्यूशन के लिए व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ c. Now we need to find out the value of n, that what can be the value of n for which our Gauss solution holds true or it is correct. So let's put the value n equal 1. We are putting this value, and after we can change that value from n equal 1 to 2. So you can see there that the our Gauss solution will work for this combination of constants and integer. Means a Gauss solution works for c greater than 1 and n greater than equal to. Okay, so this is the another variant of substitution method. It is known as using change of the variable method.